Bismillahirrahmanirrahim, and we are going for the start of new module today, and this is PTE listening module or the PTE listening exam. In listening exam, in a nutshell, there are total 90 marks. 90 number हैं listening के total, and these 90 marks are out of 360 marks of the whole PTE exam. So listening exam out of 360 gives us 90 marks in total in your PTE exam. In PTE listening, there are total 8 questions which students have to perform. Out of these 8 questions, almost 4 questions have no value. इन 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चंस की कोई वैल्यू ही नहीं। अगर आप उन 4 क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ भी देते हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू टेक अ रिस्क ऑफ मोर देन 4 to 5 numbers in the whole 360. That is even equivalent to almost 1% of the net score. सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन बहरहाल हम जरूर करेंगे, हम अटेम्प्ट भी करेंगे, मगर what I'm saying is that people go and listen. When they listen to the 8 questions, सबसे बड़ा प्रेशर जो फील करते हैं psychologically, that how we will manage these 8 questions in just 30 minutes. I'm telling you that if you need to manage the 8 questions, अगर आप 8 के 8 को मैनेज करेंगे एफिशिएंसी के बगैर, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या महसूस करेंगे लिसनिंग के एग्जाम के बिल्कुल एंड पे। 8th क्वेश्चन इज राइट फ्रॉम डिक्टेशन। राइट फ्रॉम डिक्टेशन सिर्फ 3 सवाल ऑन एन एवरेज एग्जाम में आते हैं, और वो 3 सवाल जिसमें एक छोटे से सेंटेंस को आपने रिप्रोड्यूस करना है, दैट हैव अबाउट 50 मार्क्स इन एग्जाम। 50 मार्क्स हैं उसके। पीटीई का सेकंड हाईएस्ट मार्क्स क्वेश्चन है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। आप जितना उससे पहले क्वेश्चंस पर सोचते रहेंगे और टाइम जाया करते रहेंगे, इंक्लूडिंग एमसीक्यू, सिंगल आंसर, एमसीक्यू डबल आंसर, हाईलाइट दी करेक्ट समरी और हाईलाइट द मिसिंग वर्ड, इन जितना ज्यादा इनके करीब रहेंगे और इन पे टाइम जाया कर लेंगे, उतना ही राइट फ्रॉम डिक्टेशन के लिए आपके एंड पे टाइम कम बच जाएगा। तो इसलिए हमें लिसनिंग के एग्जाम में सिर्फ आंसर्स नहीं करने हैं, we have to really reassure ourselves that we are really good managers of time in exam, and we have to demonstrate that in exam that हमने टाइम को ठीक मैनेज किया था। The 8 questions in listening exam are: number 1, it is the SST, summarize the spoken text. Summarize the spoken text is a question in which एक रिकॉर्डिंग चला दी जाती है। This recording again like retell the lecture of the speaking exam, 60 seconds से 90 seconds तक की होती है। You take the notes on your clipboard, और once the recording is over, आपने टाइप करना है अपना आंसर। रीटेल द लेक्चर में बोलना था स्पीकिंग में, और यहाँ पे एसएसटी में क्या करेंगे, यू विल टाइप द आंसर, एंड आंसर शुड नॉट एक्सीड 70 वर्ड्स। 70 वर्ड से बड़ा आंसर नहीं होना चाहिए। The second question in the exam is known as multiple choice question with multiple answers. 2 answers होने चाहिए। अब ये 2 सवाल हैं एग्जाम में, and there are only 2.6 marks of it. If you compare these 2.6 marks, see that first question के जो marks हैं वो बन रहे हैं तकरीबन 25। एसएसटी के सवाल आपको दे रहे हैं 25 मार्क्स, जबकि आपको वैसे ही 2 सवाल दे रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 2.6 मार्क्स। यू कैन जस्ट कंपेयर व्हाट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन एग्जाम, वेयर यू शुड स्पेंड मोर टाइम, दैट व्हाट यू हैव टू थिंक नाउ। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज द फिल इन द ब्लैंक्स। Fill in the blanks are the one of the main part of the listening exam as well, and there are almost 15 marks of this question, and out of these 15 marks, 7 go to listening and almost 7 go to your writing exam. The question number 4 is highlight the correct summary. Highlight the correct summary is of almost 3 marks, and then multiple choice question with a single answer is almost of 1 number. Select the missing word is almost of 1 number. Highlight the incorrect word. Highlight the incorrect word is question number 7, and it is of almost 17 numbers. And then write from dictation number 8, and this question is the second highest marks question of the whole PTE. And if you see here, 20 marks go to your listening exam, and almost 27 marks go to your writing exam. And in this way 47 marks is question के, that is known as right from dictation. If I make a crux, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप important areas को देखें तो listening में SST summarize the spoken text,
and number 2 is fill in the blanks. Number 3 is your highlight the incorrect word. Number 4 write from dictation. ये 4 सवाल हैं जिनको हम कहते हैं तगड़े सवाल. ये तगड़े सवाल हैं. बाकी 4 सवाल कुल मिला के आपको 5 मार्क्स से ज्यादा contributions नहीं देते in your exam. So 4 questions are to be looked into in a formal way. 4 questions are to be looked into in a professional way. 2 बातें अलग अलग है. 4 क्वेश्चंस को आपने देखना है फॉर्मल वे में और 4 क्वेश्चंस को आपने देखना है प्रोफेशनल वे में. प्रोफेशनल मींस यू हैव टू टेक देम अप, यू हैव टू गिव देम टाइम, you have to practice them a lot, and then you have to perform them a lot and get yourself ready for the exam. It is what the requirement. अब अगर इन 8 क्वेश्चंस के नेट इफेक्ट को देखिए तो ये 8 के 8 सवाल जो पीटीई के लिसनिंग एग्जाम के अपने हैं, ये लिसनिंग को सिर्फ टोटल आउट ऑफ 90 मार्क्स, ये लिसनिंग को सिर्फ अबाउट 50 to 55 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. Only 50 to 55 marks have been contributed by all 8 questions of PTE exam. So in 8 questions के total 55 marks हैं. That means that if we need to complete 90 marks of listening, from where the other marks will come? बाकी marks कहाँ से आएंगे? तो आपका speaking section, स्पीकिंग सेक्शन के 5 सवाल, स्पीकिंग सेक्शन के 5 सवाल, आई मीन टू से स्पीकिंग सेक्शन के 5 सवाल, उसमें से भी आप रीड अलाउड को निकाल दें, उसमें से भी आप डिस्क्राइब इमेज को निकाल दें, तो एक बचता है आपके पास रीटेल द लेक्चर, एक बचता है आपके पास रिपीट द सेंटेंस, और एक बचता है आंसर द शॉर्ट क्वेश्चंस. ये 3 सवाल लिसनिंग एग्जाम को 36 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. So in this way, what I am saying, I'm saying that listening के अपने 8 सवाल listening को कितने मार्क्स दे रहे हैं? 55, and 36 marks are taken from the speaking module 3 question. इसका मतलब ये है कि जिसका स्पीकिंग ऊपर होगा उसका लिसनिंग भी ऊपर चला जाएगा, और जिसका स्पीकिंग गॉड फॉरबिड नीचे चला जाएगा उसका लिसनिंग भी नीचे चला जाएगा, बिकॉज 36 मार्क्स आर पिलर्ड बाय द स्पीकिंग एग्जाम 3 क्वेश्चंस. अगर आपका रीटेल द लेक्चर, अगर आपका रिपीट द सेंटेंस, और अगर आपका आंसर द शॉर्ट क्वेश्चन स्ट्रांग होता है तो आपको 36 मार्क्स लिसनिंग में इंशाल्लाह लेने से कोई नहीं रोक सकता. सो हायर मार्क्स इन स्पीकिंग मींस द हायर मार्क्स इन लिसनिंग, बिकॉज अगर आपका स्पीकिंग 90 पे चला जाता है तो 36 मार्क्स तो लिसनिंग में आए ही आए ना. अब लिसनिंग के 55 में से अगर आप 40 भी ले लेते हैं तो यूर लिसनिंग गो अप टू 76, 78, 79. मेरी बात समझ में आती? नंबर 1, तो लिसनिंग के अपने 8 क्वेश्चंस जो हैं वो कितने मार्क्स दे रहे हैं लिसनिंग को? अबाउट 55. बट these 8 questions are contributing 46 marks to your writing exam. इसका मतलब ये है कि जिसका लिसनिंग नीचे चला जाएगा उसका राइटिंग भी नीचे चला गया. जरा इंटरकनेक्शन चेक कीजिएगा. And 10 marks are being contributed to your reading exam. ऊपर लिखा होगा टॉप पे रीडिंग. So what I'm saying, I'm making a conclusion. Listening के 8 सवाल अपने मॉड्यूल को दे रहे हैं 55 मार्क्स, 46 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसको? राइटिंग एग्जाम. एंड 10 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रीडिंग एग्जाम को. तो समरी क्या बनी? जिसका स्पीकिंग कमजोर उसका लिसनिंग नीचे, यानी कि जिसका स्पीकिंग ऊपर उसका लिसनिंग ऊपर, जिसका लिसनिंग ऊपर उसका राइटिंग ऊपर. So now if you see the brotherlyhood between 3 exams, stronger speaking, higher listening, higher listening, stronger. Again, I'm repeating again. Stronger speaking, higher listening. Stronger listening, higher writing exam. It is what known as the interconnection. तो 46 marks जो है वो listening दे रहा है to your writing exam. So it is what the whole contribution. And अगर आप गौर से देखें तो फिर वही बात होगी. मैंने कहा था लिसनिंग के 4 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. अब अगर लिसनिंग के 4 क्वेश्चंस को देखें तो जो 46 मार्क्स जा रहे हैं आपके राइटिंग एग्जाम में, उनमें एग्जैक्टली वही 4 क्वेश्चंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. नंबर 1, इट इज समराइज द स्पोकन टेक्स्ट. नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. एंड नंबर 3, राइट फ्रॉम डिक्टेशन. उन्हीं 4 क्वेश्चंस में से 1, 2, 3 क्वेश्चंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कहां पे? आपके राइटिंग एग्जाम के 46 मार्क्स में. एंड द हाईएस्ट मार्क्स क्वेश्चन दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू योर राइटिंग एग्जाम फ्रॉम लिसनिंग इज राइट फ्रॉम dictation. I told you it is the second highest marks question of the whole PTE exam. So I'm making a conclusion. In conclusion, listening have 8 questions. Out of these 8 questions, 4 are primary, 4 are secondary.
the total marks of 8 questions which are given to listening exam are just 55. So 90 पूरे करने के लिए listening को 36 marks कहाँ से चाहिए होते हैं? Speaking से। अब ये 8 questions जो हैं, इनके जो primary questions हैं 4, वो contribute कर रहे हैं 46 marks to your writing exam as well. So listening के अपने सवाल जिनको हम 8 कहते हैं, 4 secondary, 4 primary, ये दे रहे हैं listening को 55 और writing को कितने contribute कर रहे हैं? 46. Reading को कितने contribute कर रहे हैं? 10 marks only. Okay. And the second conclusion is that up is the speaking marks, up will be the speaking marks, up will be the listening, up will be the listening, up will be the writing marks. So ये interconnection है इन सारे के सारे exams का. So it is a brief introduction of the listening exam. Now if there is any question, I would feel happy to answer that question.